Hello students, in past video we were talk about some concept, that is how can we charge a body, that is electric charge induction method we were discussed, and in that method we are going to discuss three parts. There is one is friction based, second is contact based, and without contact. Okay, and in all the three methods we are also seeing that how can we make a uncharged body as the charged body. Now here is the question arises that okay, whenever the charge is transferred, so at that time how much quantity it is transferred, and whenever any body will be charged, then what may be the value of the charge on the body. But okay, so for that whatever the law is followed naturally, that we have to discuss in this video. So first of all we are trying to discuss that how can we consider a point charge. Okay, so in the gravitational chapter we are doing what, whenever we have to find out the gravitational force between two body, at that time we are trying to take the distance between center to center. But if our object are very small, like a small stone, at that time we are directly go through the distance between these two stone. Okay, so what is the main purpose of this thing? Whenever you are considering the any body, if its dimension will be very lesser compared to the distance between them, at that time this body will be work as a point like object, and if you taking the body to body distance is comparatively similar to the what, point to point distance, that is center to center distance. Understood or not? Okay, the same thing is happen for the here charge. If we are taking a body, so body having the number of places, there is a charge value. Okay, because we know that the atom is a charge element. एटम जो होता है वो चार्ज एलिमेंट होता है, बिकॉज सम एटम्स आर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन while some atoms are gaining the electron. Okay, and all atoms are at their respective places. So we are said that here everywhere there is a distribution of charge. So at the time if we are considering all these charge, then there may be a difficulty in describing the phenomenon. Okay, so for that we are introducing the point charge concept. So when we are considering the entire body as a point charge, so if the size of this charged body is very small compared to the distance between them, એટલે કે જે આપણે ડિસ્ટન્સની વાત કરે છે, जो भी हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में अगर इसकी साइज बहुत कम निकली, एट द टाइम वी आर कंसिडरिंग दिस एंटायर बॉडी एज अ सिंगल पॉइंट चार्ज. Okay, and here we are assume that whatever charge is distribution on the entire body will be concentrated at a one single point, that is it on center. बराबर, तो जो भी उसका सेंटर होगा वहाँ पे ही सारा का सारा चार्ज जो है वो वहाँ पे फोकस्ड है, ऐसा हम समझेंगे अंदर. बराबर, ये कौन सी थियरी हुई? सेंटर ऑफ मास की थियरी हुई, जो हमने 11th में लर्न किया था अंदर. ओके, now next point is what is the meaning of addition of the charge. We know that whenever there is a interaction is happen, at that time some charge will be transferred from one body to the another body. Okay, so if another body is already little bit charged and if additional charge is added on it, so how can we check out what is the resultant charge? So for that we have to do the simple mathematical operation, that is addition and subtraction. Okay, if you found that there is a removal of the electron, okay, then what you have to take on? The positive charge on the left atom, and whatever wherever the place the electrons are transferred, at that you have to consider the negative charge. ओके, सो सिंपल चीज़ क्या है यहाँ पे, अगर आपको पॉजिटिव चार्ज के बारे में बताया गया तो उसको प्लस वैल्यू में कंसीडर करो, और अगर आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में या तो फिर नेगेटिव वैल्यू के बारे में बताया गया तो उसको एज ए नेगेटिव चार्ज कंसीडर करो. समझ में आ रहा है? और फिर जितने भी चार्ज है सबका क्या कर दो, सिंपल एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर दो, आपका काम खत्म हो गया अंदर. बराबर, तो यही चीज़ बोली जाती है कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमको चार्ज का एस्टिमेशन कैसे करना है, हाउ कैन वी एड द चार्ज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट डज नॉट रिक्वायर एनी डायरेक्शन फॉर इट्स रिप्रेजेंटेशन. ओके, सो व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम और गिवन बॉडी, व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट बाय एडिंग द ऑल चार्जेस एल्जेब्रिकली. ओके, अगर पॉजिटिव हो तो उसको प्लस साइन के साथ रखो और नेगेटिव हो तो माइनस साइन के साथ रखो, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में सब्ट्रैक्शन हो गया, जो भी आपका रिजल्टेंट आंसर होगा वो रिप्रेजेंट हो जाएगा. इफ वी आर अज्यूमिंग दैट अ सिस्टम हैविंग द टोटल नंबर ऑफ चार्ज इक्वल टू n, okay, and if we are representing all these charge as q1, q2, q3 up to the qn, at that time you will be said that your total charge will be nothing but q1 plus q2 plus q3 up to the qn.
Okay, and mathematically if you have to represent this phenomenon in a shorter way, then you have to use the summation sign and name it I equal to 1 to the n. Okay, and write down it qi. So both are going to be same meaning or not? Okay, so प्रॉपर साइंस हैव टू बी यूज वाइल एडिंग द चार्ज इन अ सिस्टम. ओके, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर पॉजिटिव की बात है तो उसको प्लस वैल्यू में लिखो और नेगेटिव वाला है तो उसको माइनस में लिखो. सपोज अ सिस्टम हैविंग द 5 चार्ज, उसमें से 2 चार्ज नेगेटिव तो उसकी वैल्यू मैं माइनस में लिखूंगा अंदर. समझ में आ रहा है? और जो पॉजिटिव वाला है वो तो पॉजिटिव. जब भी मैं सबका एडिशन करूंगा तो यहाँ पे मुझे रिजल्टेंट वैल्यू क्या मिली? -1. देन I will see that my given body having the resultant charge is -1, as it is contain number of charge, and this charge give the resultant charge as the what? -1, and this net charge will be used in the further procedure. Okay. Now next point is that what is the difference between charge and mass? Okay, we are know that these are the two fundamental forces, that the electrical forces as well as the gravitational forces. We know that the mass is responsible for the gravity as well as charge are responsible for the electricity. So is there any difference between them? So let me find out. Okay, so first point is what? They are produce the electric field while masses are produce the what? Gravitational field. ओके, नाउ व्हाट इज द चार्ज? इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस. वो प्रॉपर्टी जो है इंट्रिंसिक है, यानी कि उसकी बाय डिफॉल्ट नेचुरल प्रॉपर्टी है जिसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन हम नहीं दे सकते अंदर. जबकि मास है वो क्या बताए? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. जो भी हमारा सब्सटेंस है उसका अमाउंट क्या है वो हमको बताता है, जिसको हम मास से रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि हम बता सकते हैं ये हैवियर होगा, लेस हैवियर होगा. बराबर है. दूसरी बात करें तो चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव. चार्ज की वैल्यू की बात करें, वी आर फाइंड आउट 2 टाइप ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज. बट इन द केस ऑफ मास वी आर ओनली फाइंड आउट द पॉजिटिव मास. ओके, द वैल्यू इज डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द चार्ज. यानी कि चार्ज की वैल्यू अगर वो मोशन में होगा कि स्टेशनरी होगा, दोनों केस में उसकी वैल्यू में कोई चेंज होने वाला नहीं है अंदर. बट इन केस ऑफ द मास यू विल बी फाइंड आउट दैट मास विल बी इंक्रीज इफ द इंक्रीज इन द स्पीड विद द एक्सट्रीमली हाई स्पीड. अगर आप बहुत ही हाई स्पीड पे उसको ले जाते हो तो उसके मास में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है, और उसके पीछे और कोई थियरी नहीं है. E = mc². बराबर. हम जानते हैं वेलोसिटी इंक्रीज होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी. बराबर. और एनर्जी का हम पता है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन एनर्जी का मास में और मास का एनर्जी में क्या होता है? कंजर्वेशन और कन्वर्जेशन होता रहता है अंदर. बराबर. तो उस वजह से वो कभी कभी क्या होता है? हैवियर मास की तरह बिहेव करता है अंदर. इसलिए यहाँ पे लिखा है कि मास विल बी इंक्रीज एज पर द स्पीड विद द एक्सट्रीमली हाई स्पीड. Now here if you find out the type of forces, then you are found out that in the case of charge there will be attractive force as well as the repulsive force. But in case of the mass, that is a production of the gravitational force which is always type of attractive. यानी कि वो always कौन से टाइप का होता है? अट्रैक्टिव टाइप का ही फोर्स होता है अंदर. और उसके यूनिट की बात करें तो we are define the charge unit as a coulomb and mass unit as the what? Kilogram. Yes or no? So there are the given simple statement for their differences. Now we are whenever we are starting our science stream in the first chapter, we are talking about the importance of the conservation of law. Okay, and in that we are mostly common aware with the what? Conservation of energy. The similar way there is the another law, the name is conservation of charge. Okay, so what is the conservation of charge, and we have to provide some examples. Okay, so whatever the statement you have written for the conservation of energy, in that statement you have to replace the word of energy by the charge, then it will be converted the law to the conservation of charge. यानी कि आप जो भी बराबर एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ का स्टेटमेंट लिख रहे हो वही का वही लिखना है, पर आपको जहाँ पे भी एनर्जी आ रही है उसको रिप्लेस करके क्या करना है? चार्ज लिख देना है. तो वो किसका लॉ बन गया? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का बन गया. पर यहाँ पे आपको एक वर्ड खाली डिफाइन करना है कि द टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व. अब ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या है अंदर? बराबर. आइसोलेट सिस्टम यानी कि यहाँ पे जो भी सिस्टम हम कंसिडर करेंगे उस पर एक्सटर्नल चीज़ का कोई भी अफेक्ट ना होना चाहिए, इसको हम आइसोलेट बोलते हैं. अभी कोरोना में हम बोलते हैं कि सेल्फ आइसोलेटेड हो गए. बराबर. तो वो घर में ही घर में रहेंगे, उस पर बाहर की इफेक्ट ना हो या तो फिर उनकी इफेक्ट बाहर ना हो, वह ध्यान में रखा जाता है अंदर.
बराबर था। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब पता चल गया आपको कि कोई भी सिस्टम होगी उसका जो भी चार्ज है नो प्रॉब्लम, पर इस पे कोई बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड या तो फिर कोई अदर बॉडी अगर वो चार्ज हो या फिर अनचार्ज हो, इसका कोई भी इंटरफेरेंस यहाँ पे होना चाहिए नहीं, तब जाके हम बोल सकते हैं कि ये क्या है भाई, आइसोलेटेड है अंदर। समझ में आ रहा है अभी अंदर, बराबर। सो टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम विल बी ऑलवेज कंजर्व। जब भी आप आइसोलेटेड सिस्टम की बात करोगे तो उसका जो भी चार्ज हो, आज देखोगे कल देखोगे आपको उसकी वैल्यू वही की वही मिलेगी अंदर। ओके, सो what are the statement of the conservation of charge? When the bodies are charged by rubbing, there is a transfer of electron from one body to the another. No new charges are either created or destroyed. Okay, हम statement क्या लिखते थे कि total energy in the universe will remain constant. Energy does not be created, not be destroyed. It will always converted from one form to the another. You have to write down the same statement. Okay, the total charge of the isolated system will be constant. Okay, the charge cannot be created, cannot be destroyed. It is always transferred from one body to the another body. हम converted नहीं लिखेंगे, ट्रांसफर लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि चार्ज कन्वर्ट नहीं होता है, ट्रांसफर होता है अंदर। तो आपको यहाँ पे एग्जांपल पता है कि whenever you are using the rubbing phenomenon for the charging the object, okay, so at that time what you are found when the bodies are charged by the rubbing, there is a transfer of electron from one body to the another. So at that time what is happen, the charges whatever the one body having, that is donated to the another. So if you are considering both of the body as a single system, then at that time there is no change in the number of charge, बराबर। यानी कि आपको चार्ज के नंबर में कोई चेंज देखने को मिलेगा नहीं अंदर। ओके, व्हेन वी रब द टू बॉडी, व्हाट वन बॉडी गेन्स इन द चार्ज, द अदर बॉडी द सेम अमाउंट विल बी लूज। यानी कि जो एक गेन कर रहा है तो दूसरा क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। तो बात तो वही की वही हुई ना अंदर, बराबर। आप अपने पॉकेट में 10 रुपीज़ डाल रहे हो और आपका पॉकेट में क्या है, कट गया अंदर, तो वो 10 रुपीज़ नीचे गिर जाता है, तो आपका पॉकेट एम्प्टी का एम्प्टी रहा ना अंदर, बराबर। तो यही चीज़ यहाँ पे बोला जाता है। Within an isolated system consisting of many charged body, due to the interaction among the body, charge may be redistributed and remain conserved. अगर आप एक सिस्टम कंसिडर, उसमें बहुत सारी बॉडी है, तो एक दूसरे से इंट्रैक्शन करके वो क्या करेगी, इसका चार्ज इस पे ट्रांसफर करके इसका यहाँ पे करेंगे, यानी कि यहाँ पे चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा अंदर, बराबर। पर रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, पर हम ये सारे लोगों की एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर करेंगे तो टोटल चार्ज तो क्या घर का घर में ही रहा ना अंदर। समझ में आया कि नहीं आया अंदर? इसका यहाँ पे क्या है, हमको तो सबका ही चार्ज गिनना है, तो टोटल चार्ज तो जो मिलने वाला है वही का वही हमको मिलेगा अंदर, बराबर। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय नेट चार्ज कैरिड बाय द एनी आइसोलेटेड सिस्टम, ऑल्दो द चार्ज कैरिंग पार्टिकल मे बी क्रिएट और डिस्ट्रॉय इन द प्रोसेस। क्योंकि कभी भी हम चार्ज को ना ही क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय करता, वो ऑलवेज अपने आप ही फॉर्म होता है और अपने आप ही एक दूसरे को क्या कर देते हैं, नलीफाई कर देते हैं अंदर। इसीलिए तो हमको पता चलता है कि कोई भी एलिमेंट को हम न्यूट्रली चेक करते हैं तो हमको इलेक्ट्रिकली क्या मिलता है, न्यूट्रल मिलता है अंदर, बराबर। तो यहाँ पे आप कोई भी प्रोसेस देखो, वेदर यू आर टेकिंग द फ्रिक्शन प्रोसेस फॉर द चार्जिंग मेथड, अदरवाइज you are taking the charging method by the induction, in all of the case there is a transfer of charge from the one body to the another body. Okay, and if you are considering the another field of example, that is in the terms of nuclear fission or fusion, in the case whenever neutron turns to destroy and it will be converted into the two part, that is one proton and electron, and if you are find out the conservation of charge, then what you are find out that neutron having already neutral charge, that is zero charge, and it will be form one proton and one neutron, यानी कि न्यूट्रॉन का डिवीजन होके आपको एक प्रोटॉन मिलेगा और एक क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा, सॉरी, बराबर। तो प्रोटॉन का पॉजिटिव ही है और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव है, रिजल्टेंट तो जीरो ही मिला ना। भले आपको दो चार्ज पार्टिकल मिले पर ये दोनों की सिस्टम का टोटल चार्ज तो जीरो हुआ ना, इसीलिए यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम कंटिन्यूसली वर्ड किया गया है। और ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, ग्लोबल, यानी कि यूनिवर्सल प्रोसेस है। कहीं पे भी जाओगे ये लो अपने आप में क्या होता है, फॉलो होता है और होता है, इसीलिए तो उसको कंजर्वेशन बोला गया है, नेचर का लो है ये अंदर, बराबर। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आता है, व्हाट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वी आर सेड दैट द चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी। नाउ क्वेश्चन इज अराइज दैट हाउ मेनी चार्ज विल ट्रांसफर टू द अनदर बॉडी। Okay, how can we calculate its value? So for that we have to follow this law, quantization of charge. तो यहाँ पे क्या था, फेराडे था, उसने अपने एक्सपेरिमेंट किए तो वहाँ से उसको पता चला कि whenever there is the interaction between the atom, at the time there is
ऑलवेज ट्रांसफर ऑफ चार्ज इन द मल्टीपल ऑफ वन यूनिवर्सल कांस्टेंट, यानी कि एक कांस्टेंट है उसके मल्टीपल में ही हर बार चार्ज का क्या होता है, एडिशन होता है या तो फिर सब्ट्रैक्शन होता है अंदर, बराबर। तो यही चीज को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का लॉ बनाया गया अंदर, बराबर। सो ऑल द चार्ज फाउंड इन द नेचर वेदर दे आर चार्ज बॉडी और नेगेटिव चार्ज बॉडी और पॉजिटिव चार्ज बॉडी, अगर आप कभी भी उसका चार्ज फाइंड करते हो तो उसका चार्ज का वैल्यू ऑलवेज फाउंड टू बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ द चार्ज दैट इज डिनोटेड बाय द ई, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसको आप 1 से करो, 2 से करो, 3 से, यानी कि कोई भी पॉजिटिव बराबर इंटीजर वैल्यू यानी कि होल वैल्यू बराबर उससे मल्टीप्लाई करोगे, अगर नेगेटिव होगा तो -1 से मल्टीप्लाई करना है, पॉजिटिव हो तो इसीलिए इंटीजर लिखा है अंदर, बराबर। आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही आंसर मिलेगा जो उसका टोटल चार्ज है अंदर, समझ में आ रहा है। यानी कि आपकी बॉडी का कोई भी चार्ज है, इफ़ यू आर डिवाइडिंग दैट वैल्यू ऑफ चार्ज डिवाइड बाय द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज, देन यू विल ऑलवेज फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ व्हाट, इंटीजर। आपको कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू ही मिलेगी, या तो फिर 2 मिल सकता है या तो 100 मिलेगा, लाख मिलेगा, कभी भी आपको 1.1 या तो फिर -2.3 यानी कि 4/3 √3 ऐसी कोई भी वैल्यू आपको मिलेगी नहीं अंदर, समझ में आ रहा है। एंड दिस फैक्ट इज कॉल्ड द व्हाट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो ऑल द चार्जेस found in the nature are always integral multiple of the basic unit of the charge, that is the charge of electron, and this fact is considered as the what, क्वांटाइजेशन। हम केमिस्ट्री में वैसे भी जानते ही है कि जब भी एक एटम दूसरे एटम के साथ रिएक्शन करता है आयनाइजेशन के प्रोसेस में क्या करता है, वो अपना लास्ट ऑर्बिट का यानी कि वैलेंस ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके ही चार्ज का ट्रांसफर होता है। तो वही बात हुई ना, हर बार इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कभी आधा इलेक्ट्रॉन तो जाएगा नहीं, जाएगा तो पूरे का पूरा ही जाएगा ना अंदर। आपके लेग जा रहा है तो आपकी बॉडी भी उसके साथ ही जाएगी ना, वैसी चीज़ है, इसलिए वो हर बार ई के मल्टीपल में हमको चार्ज मिलता है अंदर, बराबर। तो उसके हिसाब से हम कोई भी बॉडी का चार्ज का टोटल चार्ज का इक्वेशन लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं कि भाई टोटल चार्ज उसका क्यों हम कंसीडर करें तो उसके इक्वल टू क्या लिखेंगे, एन ई लिखेंगे, यानी कि कोई भी नंबर ऑफ होगा उसको ई से मल्टीप्लाई करके आपको कोई भी बॉडी का टोटल चार्ज मिल जाएगा और मिल ही जाएगा अंदर, बराबर। दस द चार्ज Q ऑन द बॉडी इज ऑलवेज गिवन बाय दिस फॉर्मूला Q इक्वल टू एन ई, जहाँ पे n की वैल्यू पॉजिटिव होगी अगर आप पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात कर रहे हो और नेगेटिव होगी जब आप नेगेटिव चार्ज के बारे में बात कर रहे हो अंदर, समझ में आ गया। And this quantization of charge was first suggested by the experimental law of the electrolysis that is discovered by the English experimentalist name is Faraday। Faraday ने आपको पता है इलेक्ट्रोलाइटिक केमिकल के जो रिएक्शंस होते हैं उसमें 2 लॉ दिए थे, उसका एक लॉ का एक एक्सपेरिमेंटल ये क्या है रिजल्ट है, जहाँ से हमको सजेशन में मिला कि भाई यहाँ पे चार्ज का ट्रांसफर ये क्वांटाइजेशन चार्ज के प्रिंसिपल का नाम बना अंदर, समझ में आ रहा है। और ये एक्सपेरिमेंट का जो सजेशन था, ये तो सजेशन था, उसको लग रहा था कैसा हो रहा है, एंड दैट इज प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट बाय मिलिकन इन 1912, बराबर। वो मिलिकन ने क्या किया, प्रैक्टिकली समझाया कि देखो हाँ भाई ये बात सजेशन में जो मिल रही थी वो एक्सपेरिमेंटली भी सही है और हर बार ऐसा ही होता है, इसलिए ये लॉ का अपने आप में क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है अंदर। द मेन रीजन ऑफ द क्वांटाइजेशन इज दैट when the two bodies are rubbed only integral number of electron transfer from one body to the another, जो हमने अभी बात की, क्योंकि केमिस्ट्री भी पूरी उस पर डिपेंड है, जब भी यहाँ पे कुछ होता है तो इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए तो हमको ये फैक्ट अपने आप में मिल जाता है अंदर, समझ में आ गया कि ना आ गया। क्योंकि आप कभी भी बस में बैठे पैसेंजर का नंबर काउंट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इंटीजर नंबर ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा अंदर। 30 पैसे कभी बोलोगे आप 13.5 पैसेंजर बैठे हैं, हाँ बच्चे की आधी टिकट करना तो वो बात अलग है, पर पैसेंजर तो एक ही गिना जाएगा ना अंदर, बराबर। चल दूसरी बात करते हैं यहाँ पे यूनिट के बारे में। सो व्हाट इज द मेन ऐसा यूनिट एंड वैल्यू ऑफ द फंडामेंटल चार्ज, हमने ऑलरेडी सब डिस्कस कर लिया, वही के वही पॉइंट यहाँ पे दिए गए। तो इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर एज द फंडामेंटल चार्ज। तो सारे चार्ज में फंडामेंटल चार्ज किसको बनाया गया भाई, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसको फंडामेंटल, क्योंकि उसकी वैल्यू कभी बदलती नहीं है इसलिए उसको फंडामेंटल दिया है। बाकी अदर बॉडीज की बात करें तो आज ये है कल रंग बदल देंगे अंदर, बराबर। और हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका चार्ज हमने क्या कंसीडर किया है, नेगेटिव किया है कि नहीं किया अंदर, बराबर। फिर चार्ज को रिप्रेजेंट करने के हम सिंबल क्या यूज़ करें, यूनिट क्या यूज़ करें, कूलम, और कूलम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सी यूज़ करेंगे कैपिटल वाला,
बराबर। अगर आपको 1 कूलम की डेफिनेशन देनी है तो कैसे देंगे अंदर, बराबर। तो आपको पता होगा 10th में आपने एक फॉर्मूला स्टडी की होगी, द फॉर्मूला ऑफ करंट, दैट इज व्हाट I इक्वल टू Q बाई टी। तो अगर आप Q को फॉर्मूला बनाओगे तो क्या होगा, IT होगा कि नहीं होगा। तो अगर आपको Q की वैल्यू 1 कूलम चाहिए, सो व्हाट यू हैव टू टेक ऑन I ऑल्सो 1 एम्पियर एंड टाइम इज ऑल्सो 1 सेकंड। सो इफ यू मल्टीप्लाई 1 into 1 यू आर गेटिंग द आंसर 1 और नॉट, यस और नो, बराबर। तो आपको क्या करना है, करंट भी 1 एम्पियर लेना है और टाइम भी 1 सेकंड लेना है। तो आपकी फॉर्मूला 1 कूलम की बन गई। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, 1 कूलम इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर इन 1 सेकंड इफ द करंट इज 1 एम्पियर। यानी कि कोई भी कंडक्टर होगा, इफ द करंट इज पासिंग थ्रू दैट कंडक्टर इज 1 एम्पियर इन in 1 second whatever the flowing of charge you are found per cross section, that is the amount of 1 कूलम। यानी कि यहाँ पे 1 सेकंड में अगर 1 एम्पियर जितना करंट पास हो रहा हो और अगर 1 सेकंड में आप गिवन क्रॉस सेक्शन से जितना भी चार्ज फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू चेक करोगे तो अपने आप में वो क्या होगी, 1 कूलम ही होगी अंदर, बराबर। हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज की वैल्यू हम क्या लेते हैं, एक्चुअल वैल्यू इज 1.60219 into 10⁻19 coulomb, but for a reference we are taking only 1.6 into 10⁻19. Okay, so if you have to prepare 1 coulomb charge, okay, so how many number of our electron you needed? Okay, so you have to follow the simple formula. If I have 1.6 into 10⁻19 coulomb charge, then I have the 1 electron. So if I need 1 coulomb charge, then how much? Just cross multiply and divide by it. So if you taking division of 1 divided by 1.6 into 10⁻19, then you will be find out the answer is 6.25 into 10⁻18. Means आपके पास 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होंगे तब जाके 1 कूलम खाली चार्ज होगा अंदर। यानी कि कूलम अपने आप में बहुत बड़ा यूनिट है, ये छोटा यूनिट नहीं है। हमको बोलने में भले छोटा लगता है पर एक्चुअल में देखो कितने सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होंगे तब जाके हमको 1 कूलम का क्या मिलता है, चार्ज मिलता है। पर हम प्रैक्टिकली जब भी चार्ज के रिलेटेड एक्सपेरिमेंटल की बात करते हैं तो वेन एवर वी आर डीलिंग विद द चार्ज देन वी हैव टू मोस्टली फ्रीक्वेंटली डील विद दी व्हाट, माइक्रो कूलम, अदरवाइज दी नैनो कूलम, बराबर। ये छोटे चार्ज के साथ ही हमको क्या करना पड़ता है, डील करना पड़ता है। और कभी बहुत ज़्यादा बड़ी सिस्टम की बात करें तो तब जाके हम मिली कूलम पे जाके अटकते हैं अंदर, बराबर। तो यही रीज़न है कि हमारे घर में भी जो सप्लाई आता है, बराबर, तो उसकी वैल्यू कम होने का रीज़न यही एक रखा गया है। दूसरा भी एक रीज़न है जो हम आगे वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, पर हमको करंट भी कम मिलेगा क्योंकि उसके लिए इलेक्ट्रॉन की क्वान्टिटी भी तो देखो कितनी सारी चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया अंदर, बराबर है। फिर नेक्स्ट चीज़ आपको यहाँ पे बताया गया है कि वाई कैन वी से दैट द चार्ज ऑफ एनी बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, यानी कि वो ई का ही मल्टीपल क्यों होता है। तो आपको मैथमेटिकली थोड़ा यहाँ पे समझाने का ट्राई किया अंदर, बराबर। सो व्हाट आर द पॉइंट्स, if the protons and electron are only basic charge in the universe then all the observable charge have to be integral multiple of E, क्योंकि हमने उसको ही फंडामेंटल लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ऑलवेज ई का ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ द बॉडी कंटेन n1 इलेक्ट्रॉन एंड n2 प्रोटॉन देन टोटल अमाउंट ऑफ द चार्ज ऑफ द बॉडी हाउ कैन वी राइट डाउन। हमको पता है कि प्रोटॉन का चार्ज हम क्या लिखते हैं, प्लस ई लिखते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या क्या लिखते हैं, माइनस ई लिखते हैं, बराबर। तो हमारे पास n1 जितने इलेक्ट्रॉन तो उसका चार्ज क्या होगा, n1 इंटू ई और माइनस साइन होगी प्लस। प्रोटॉन के चार्ज की बात करें तो क्या होगा, n2 ई होगा कि नहीं होगा। अभी दोनों में से ई को कॉमन निकाल लो तो क्या हुआ, माइनस n1 प्लस n2। अभी n1 और n2 दोनों के दोनों इंटीजर है, तो हमको पता है कि अगर दो इंटीजर के बीच में एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा देन यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर इज अगेन इंटीजर, यस और नो, बराबर। तो हो गया ना हमारा जो प्रूव करना था, बराबर। और अगर आप ये दोनों के बीच का डिफरेंस ले रहे हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो फिर दोनों माइनस हो जाएगा, फ़र्क क्या पड़ा, बराबर। तो आप एडिशन करोगे सब्ट्रैक्शन करोगे, दो इंटीजर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन आपको इंटीजर ही मिलता है, तो इंटीजर का ई के साथ मल्टीप्लिकेशन, वही तो क्वांटाइजेशन चार्ज बता रहा था। इसीलिए यहाँ पे बता रहा है कि ऑलवेज इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ द वर्ड ई है आएगा। समझ में आ रहा है अंदर इतना बात, बराबर। फिर यहाँ पे ऐसा चीज़ बोला गया है, कैन वी निग्लेक्ट द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इफ यस देन मेंशन द सिचुएशन। सिंपल सी बात में ये आपको थियरीज पॉइंट दिए गए पर इतने सारे पॉइंट नहीं लिखने, सिंपल सी बात याद रखनी है। वेन एवर वी आर डीलिंग विद द फिनोमिनन देन वी आर फाइंड आउट द टू टाइप ऑफ फिनोमिनन, वन इज द व्हाट, मैक्रो and other one is the what, micro।
बराबर। माइक्रो को हम अपनी नेट आई है उससे हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जबकि मैक्रो जो होता है उसको हम देख सकते हैं, बराबर। तो जब भी मैक्रो की बात हो रही है तब हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर करना है तो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमको पूरी बॉडी के बारे में बात करना है, तो हम हर चार्ज को इंडिपेंडेंटली अंदर का नहीं लेंगे, सारे चार्ज को मिला के एक बॉडी का एक फिक्स चार्ज ले लेंगे अंदर, समझ में आ रहा है। इसलिए वहाँ पे हम क्यों ही लिखेंगे, क्योंकि जगह एनी लिखने की वहाँ पे ज़रूरत पड़ती नहीं अंदर, समझ में आ रहा है। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में पॉइंट चार्ज के बारे में बात किया था अंदर। पर जब आप माइक्रो के बारे में, यानी कि आपका जो भी प्रैक्टिकल है उसमें माइक्रो फिनोमिनन पे जाने की ज़रूरत पड़ रही है, भला माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आपको देखना पड़ रहा है, तो वहाँ पे आपको क्या होगा, ये चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा अंदर। समझ में आ रहा है आपको इतना पार्ट, बराबर। तो यही ये क्वेश्चन का क्या है, इंपॉर्टेंस है। आपको मैं यहाँ पे स्क्रीन पे रोटेट करके सारे स्टेटमेंट बता रहा हूँ, आप पॉज करके रीड करोगे तो यही सार आपको ये क्वेश्चन में से मिलेगा अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, बराबर। तो ये वीडियो में हमने क्या किया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में डील किया। अगले वीडियो में शायद कॉलम लॉ आएगा तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।